محنت ہوتا ہے۔ اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے۔ پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔ کو سلام یا رسول اللہ۔ تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے۔ نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی، بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی۔ بدے خضرا کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا۔ آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں۔ اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے۔ مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے۔ تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی۔ در کی فضاؤں کو سلام۔ پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا۔ تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی۔ بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا۔ آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا۔ پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے۔ مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے، ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا۔ ماہر کاریگر جپسن پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے۔ نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے۔ جو طواف روضائے اقدس کرے، نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی۔ اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں۔ پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا، جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ 2312 محرابیں تعمیر کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وجد کرتی
उन हवाओं छत भी इसी अंदाज में तामीर की गई। इसको मुनक्कश पत्थरों से आरास्ता किया गया। जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते खादिमे हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना ज़ियारत के लिए 19 जमादिउल अव्वल 1410 हिजरी को आए। उन्होंने तामीराती मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर तामीराती मकसद की अलामत के तौर पर इस अम्र पर गौर किया गया कि मंसूबा किस हद तक लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नए मीनारों में से पहले का काम शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ। इस मरहले पर एक मर्तबा फिर मसनूई पत्थरों की जरूरत हुई। पत्थरों की तैयारी के लिए जदीद तरीन निजाम की मौजूदगी के बावजूद पत्थरों के बड़े टुकड़ों को मीनारों की छत तक हाथ से ही ले जाना पड़ा। को सलाम। मस्जिद नबवी के सुबह मस्जिद के 6 नए मीनारों का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। इसका हर अंदाज इस्लामी तर्ज तामीर के दरीचे खोलता नजर आता है। मस्जिद नबवी के सुबह और शामों बाब फहद पर इस्लामी फन तामीर के भरपूर मजहर दोनों मीनारों की तामीर मुकम्मल हो गई। ये मीनार 104 मीटर बुलंद हैं। तेरे गुलामों के गुलामों। तौसी मंसूबे में इस बात की कोशिश की गई कि ज्यादातर तामीराती सामान मुल्क ही का हो और बैरून मुल्क से दरामद न करना पड़े। ताहम जरूरत पड़ने पर दरामदी अशिया का इस्तेमाल भी किया गया। सऊदी अरब में आला मियार के ग्रेनाइट या संग लाख के वसी जखीरे हैं। इसकी 2 अक़साम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिनमें सुर्खी माइल और सुरमई ग्रेनाइट शामिल हैं और अल कसीम के सहरा में इसके ज़खायर हैं। ग्रेनाइट का शुमार एशिया की सख्त तरीन चट्टानों में होता है और इसे काटना इंतहाई दुश्वार होता है। करते हैं रोज़ो शब। तौसी मंसूबे के लिए खास तौर पर कायम की गई फैक्ट्री में ग्रेनाइट के सिलों की तमाम खामियों को दूर किया गया। यह फैक्ट्री दुनिया में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार होती है। इसमें हर महीने 600 मुकब मीटर ग्रेनाइट को निमटाने की गुंजाइश है। जहां पहले ग्रेनाइट को जिसामत और मेयार के एतबार से छांटा और दर्जाबंदी की जाती है। इसके साथ ही दर्जाबंदी के एतबार से एक कोड नंबर देकर इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कर दिया जाता है, जो पैदावार के हर मरहले के दौरान देखा जा सकता है। ग्रेनाइट की सिलों को काटने का अमल दिन रात जारी रहा। कटाई और पॉलिश के बाद हर टुकड़े का पूरी तरह मुआयना किया गया और रवाना कर दिया गया। आखिरी मुआयने के बाद तमाम ईंटों पर इनफरादी और तामीराती इलाके के कोड नंबर डाले गए ताकि तामीर के दौरान इन्हें दुरुस्त मकाम पर नस्ब करने में सहूलत रहे। मस्जिद की तौसी के हर पहलू के तफसीली मंसूबे तैयार किए गए थे। सलामों को सलाम। मस्जिद की 4 दीवारी के लिए 1,20,000 ईंटों की जरूरत पड़ी। तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खिज़रा की शानदार किस्म की मजीद 11,000 ईंटों की जरूरत थी।
सलाम। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल। मस्जिद की तौसी के लिए चौथी किस्म के लैक्रो ग्रेनाइट को शहर के जुनूब में वाक़े नहरान के नखलिस्तान से लाया गया। यहाँ सुर्ख रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट को तवील मुरब्बा ईंटों की सूरत में काटा गया और इसे सुतून की सूरत में तब्दील कर दिया गया। फिर इन सुतूनों पर पॉलिश की गई ताकि ग्रेनाइट के चमकीले सुर्ख रंग को वाज़ेह किया जा सके। मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। हर आइटम की जांच पड़ताल की गई और मदीना मुनव्वरा रवाना करने से कबल इनको हतमी तौर पर चमकाया गया। ए जमीनुश शियम, ए इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अब्र करम, हस्तिये मोहतरम क़िबलाए मोहतरम। फसीहुल बयां, ए बलीगुल लिसान। तौसी मंसूबे के डिजाइन में 27 वसी और खुले सहन भी शामिल थे। खादिम हरमैन शरीफैन ने फैसला किया कि इन्हें इस तरह ढांक दिया जाए कि सहनों की छतों को मौसम की मुनासबत से खोला या बंद किया जा सके। इस तरीके से उन्होंने महज दावों के बजाय अमली तौर पर मुसलमानों की खिदमत के जज्बे को साबित किया। एक जर्मन मुसलमान डॉक्टर महमूद मुराश को उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन की तैयारी का काम सौंपा गया। उन्होंने इस मंसूबे के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर कमाल इस्माइल की सरकर्दगी में पूरे मंसूबे का करीबी मुशाहिदा किया। उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन को तौसी मंसूबे में शामिल करने के लिए हमदर्दी से गौर किया गया। डॉक्टर इस्माइल ने सरकते गुंबदों का अछूता तस्वुर पेश किया था। दोनों ही तस्वुरात अमली और जमालियाती तौर पर दुरुस्त थे, इसलिए दोनों तस्वुरात को यकजा करके गुंबदों की तामीर का फैसला किया गया। वो मस्जिद के गुंबद खिजरा की रिवायती बरतरी के लिए किसी किस्म का चैलेंज नहीं थे, बल्कि उसके मुआविन और मददगार थे। हतमी डिजाइन स्ट्रक्चर और खुद उनकी तजावीज के सिलसिले में मुआविनत के लिए कंप्यूटर के जदीद तरीन प्रोग्रामों को इस्तेमाल किया गया। जब खादिमे हरमैन शरीफैन जमादियुस्सानी 1411 हिजरी में अपने सालाना मुआयने के दौरे पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सरकने वाला एक गुंबद उनकी मंजूरी के लिए तैयार था। रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, आप फख्रे अजम। सरकते गुंबद के एक नमूने की पेशकश कामयाबी से हमकिनार हुई, क्योंकि खादिमे हरमैन शरीफैन ने इसकी मंजूरी दे दी। बाकी 26 गुंबदों की तामीर फौरी तौर पर शुरू कर दी गई, जिन्हें बटन दबाकर खोला या बंद किया जा सकता है। हशम शाहे वाला नसब मुर्तजा मुजतबा खातमुल। उम्दा किस्म के फौलाद से रेलवे लाइनों की तर्ज के ट्रैक और पहिए तैयार किए गए। इन्हें इतना मजबूत बनाया गया कि वो गुंबद का वजन संभाल सकें। एक पहिए को 20 टन का वजन उठाना पड़ता है।
फौलाद के पहिए रेलों की तरह आला किस्म के मटेरियल से तैयार किए गए हैं। हर पहिए को हाथ से जोड़ा गया ताकि गुंबदों को खोलने और बंद करने का अमल किसी रुकावट, फन्नी खराबी और दुश्वारी के बगैर अंजाम पाए और महफूज और पायदार भी साबित हो। सरकते गुंबदों की तैयारी और उन्हें नस्ब करने का अमल महारत और उम्दगी के साथ अंजाम पाया।